Hello all, I Zatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Soft Tech. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsa, hashtag A to Z Softtech. Now, let's start with the topic. So today's topic is 8251, that is USART. 8251 is an IC which is designed by Intel and its name is USART. USART is responsible or used for communication, serial and parallel. Okay, it receives data in one form and transmits in other form. We'll study whether it is receiving in serial or in parallel. Similarly, sending in serial or parallel. As it is receiving and transmitting. So there is transmitter and receiver section. 8251 or USART. 8251 is the IC and the name is USART. Okay, दोनों में से कोई एक चीज बोलेंगे हम, either 8251 बोलिए और USART बोलिए. Okay, that is responsible for communication. Okay, and communication कहाँ होगी ये? Communication between computer यानी कि processor and telephone. Telephone means network. Okay, टेलीफोन नेटवर्क मींस मॉडेम के थ्रू और दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है अगर आपने, तो वो किस तरीके से करेंगे? बीच में जो मीडियम है, मैकेनिज्म है, वो टेलीफोन लाइन हो सकती है, नेटवर्क हो सकता है. सो मींस दो प्रोसेसर की कम्युनिकेशन कराने के लिए हम यूज करते हैं 8251. सो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ 8251. कैसे है, क्या क्या डिटेल्स है, वो भी हम देखते हैं. 8251 इज अ प्रोग्रामेबल serial communication interface. Now, the term is serial. This is most important thing, that it is a serial communication interface. Means the communication is possible in serial way only. Okay. Serial communication हम लोगों ने आर्किटेक्चर में भी पढ़ा था, बिट बाय बिट. ओके, एक एक करके बिट ट्रांसमिट करी जाती है ओवर अ सिंगल लाइन, एक लाइन के ऊपर. ओके, इट इज डिजाइन फॉर सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस. दो तरह की कम्युनिकेशन कर सकते हैं हम, synchronous mode or asynchronous mode. It supports serial transmission of data. Data is transmitted in serial form, not in the parallel. What I would told you कि communication दो तरह से होती है, serial और parallel. अब USART serial करता है या parallel करता है वो हम देखते हैं. तो हमने क्या पता लगा that USART supports serial transmission of data. So USART से serial transmission होती है. And it is a 28 pin DIP package. Means 28 पिन का आईसी है जिसमें 14 एक साइड होंगी और 14 दूसरी साइड. तो 14 साइड ईच, टोटल इज 28 पिन्स. ओके, नाउ दिस इज द पिन स्ट्रक्चर एंड पिन आर्किटेक्चर ऑफ USART. दिस इज द पिन डायग्राम. ओके, एंड दिस इज पिन आर्किटेक्चर. पिन डायग्राम और पिन आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस होता है? पिन डायग्राम में सीक्वेंशियल होता है, 1 2 3 मीन्स कहाँ कौन सी पिन का क्या काम है. एंड पिन आर्किटेक्चर में क्या होता है, कौन कौन सी पिन टोटल हैं. यहाँ पर हमने लाइक 8 बिट की डेटा बस है तो हमने इकट्ठी एक जगह बना दी 8 बिट की डेटा बस. क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, बस ये देखना है. ओके, बस इसमें हमारे को इनपुट और आउटपुट दिखाना होगा कि कौन सा सिग्नल इन है और कौन सा सिग्नल आउट है. दैट इज आर्किटेक्चर. एंड जब आप सीक्वेंशियल मैनर में लिखते हो पिन 1 2 3 अप टू 28, दिस इज नोन एज पिन डायग्राम. ओके, नाउ as we studied that it is a 28 pin architecture, means 14 this side and 14 this side. Starting from this, D2, D3, D4, 5, 6, 7, 8, D1, D0. So this is parallel data. Means 8251 is receiving parallel data, but it sends serial data. Listen carefully. Receives parallel but transmit serial. ओके, सो USART का क्या बेनिफिट है कि आपके पास पैरेलल डेटा आ रहा है और आपने पैरेलल को सीरियल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? USART को यूज करेंगे. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज C/D bar. मीन्स
या तो सी सिग्नल होगा या डी बार होगा, बिकॉज कोई भी सिग्नल है आइदर 1 और 0। अगर इस पिन पर 1 है, इट मीन्स 1 मीन्स सी और 0 मीन्स डी। इट मीन्स सी मीन्स कंट्रोल रजिस्टर एंड डी मीन्स डेटा बफर सेलेक्ट। सो या तो आप इसमें कंट्रोल वर्ड पास करेंगे, कंट्रोल वर्ड का काम होगा, अदरवाइज डेटा बफर मीन्स डेटा बस एक्टिव होगी। रीड, राइट, चिप सेलेक्ट, क्लॉक, रीसेट, ये सारे सिग्नल्स हम बहुत बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे सिग्नल्स किसका पार्ट होते हैं? कंट्रोल लॉजिक का। देन जो नए सिग्नल्स हैं उसकी डिस्कस करते हैं। टीएक्सी, टीएक्स, जहां पर भी टीएक्स लिखा होता है दैट मीन्स ट्रांसमिशन, आरएक्स रिसेप्शन और रिसीविंग, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिटिंग। सो टीएक्स लिखा हुआ है, एक्स जो है वो सबस्क्रिप्ट रहेगा। टीएक्ससी मीन्स ट्रांसमीटर क्लॉक, ट्रांसमिशन की क्लॉक है। आरएक्ससी रिसीवर क्लॉक। टीएक्सडी ट्रांसमीटर डेटा, आरएक्सडी रिसीवर डेटा। आरएक्स आरडीवाई, आरएक्स मीन्स रिसीवर, आरडीवाई मीन्स रेडी, रिसीवर रेडी। टीएक्स आरडीवाई मीन्स ट्रांसमीटर रेडी। डीएसआर, डीएसआर इज डेटा सेट रेडी, डेटा सेट रेडी। डीटीआर डेटा टर्मिनल रेडी। डेटा सेट मीन्स जब आपको डेटा ट्रांसमिट करना है उसके लिए, डेटा टर्मिनल कहां से ट्रांसमिट करना है उसके लिए। डिटेल सारे ब्लॉक्स की अभी देखेंगे हम, इसका आर्किटेक्चर को कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, एवरीथिंग। द नेक्स्ट इज सिन डेट और ब्रेक डेट, सिंक्रोनस डिटेक्ट और ब्रेक डिटेक्ट। नाउ दिस सिग्नल इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई सिंक्रोनस डिटेक्ट और ब्रेक डिटेक्ट? Let this is A and this is point B. Computer A, computer B, processor A, processor B. So A to B is communicating. A से B communicate हो रहा है just to detect whether it is synchronous or there is any break in between. This signal has been used. Synchronous detect ये क्या डिटेक्ट करेगा कि दोनों डिवाइसेस synchronously communicate कर रही हैं और क्या उन डिवाइसेस के बीच में कहीं कोई ब्रेक हुआ है। ब्रेक होने का मतलब क्या हुआ कि उनके बीच में कहीं कोई ट्रांसमिशन डिले है या डिवाइस ए ने डेटा भेज दिया, डिवाइस बी तक डेटा नहीं पहुंचा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आरटीएस, रिक्वेस्ट टू सेंड डेटा। सो आरटीएस सिग्नल कब आएगा? जब डेटा रिसीव करना होगा, तभी तो डेटा की रिक्वेस्ट जनरेट होगी। सीटीएस, क्लियर टू सेंड डेटा, ये क्या होगा? एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल होना चाहिए सीटीएस। ओके, सीटीएस क्या बताएगा कि हाँ अब डेटा आ रहा है। ओके, नाउ एक्नॉलेजमेंट सिग्नल प्रोसेसर से आएगा, तो जब जो सिग्नल प्रोसेसर से आ रहा है वो इसके लिए तो इनकमिंग होगा, बट प्रोसेसर के लिए आउटगोइंग होगा। हमने लास्ट जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस केस में मैंने आपको बताया था इंटरप्ट में कि इंटरप्ट जो है यहाँ से जो आपका 8259 था उससे आउटगोइंग है, बट प्रोसेसर के लिए इनकमिंग है। सिमिलरली सीटीएस क्या है? क्लियर टू सेंड डेटा, एक एक्नॉलेजमेंट है कि हाँ अब डेटा आ रहा है। तो एक्नॉलेजमेंट तो प्रोसेसर ने दी है, तो रिसेप्शन किसने किया? रिसीव किसने किया? यूजर्ट ने। तो सीटीएस इज अ रिसेप्शन। अब रिक्वेस्ट टू सेंड डेटा, रिक्वेस्ट कौन करेगा? प्रोसेसर करेगा, यूजर तो नहीं करेगा, यूजर तो मीडियम है। ओके, सो प्रोसेसर रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है या प्रोसेसर रिक्वेस्ट रिसीव कर रहा है, तो इट मीन्स दिस इज अ आउटपुट सिग्नल फॉर यूजर्ट। सो कंफ्यूज मत होना, अकॉर्डिंग टू द डिवाइस, कौन सी डिवाइस है जो रिक्वेस्ट जनरेट कर रही है, कौन सी डिवाइस है जो एक्नॉलेजमेंट जनरेट कर रही है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इनकमिंग और आउटगोइंग सिग्नल कौन सा है। ओके, देन लास्ट इज टीएक्स एम्प्टी। टीएक्स मींस ट्रांसमिशन, ट्रांसमीटर एम्प्टी, कोई और डेटा नहीं है। वीसीसी एंड ग्राउंड, सप्लाई एंड ग्राउंड मींस 0 वोल्ट। सो दिस वाज ऑल द पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ यूजर्ट। पिन आर्किटेक्चर सिंपल है, बस आपको इनपुट आउटपुट का ध्यान रखना है। सीक्वेंस है जो आपको ये जो है रीड करना होगा। नाउ एज योर एग्जाम्स आर गोइंग इफ इन एमसीक्यू मोड, तो उस एमसीक्यू मोड में आपको सीक्वेंस इस चीज का ध्यान रखना होगा। अगर वो पूछे पिन नंबर 6 ऑफ यूजर्ट इज डेटा पिन, इंटरप्ट पिन, ट्रांसमिशन पिन, रिसेप्शन पिन, तो उसमें आपको सीक्वेंस याद होगा, रखना होगा। ओके, सो अब आपको पिन डायग्राम बनाना नहीं आएगा, बट वो आपसे किसी भी पिन के बारे में पूछ सकता है दैट दिस पिन इज
इनकमिंग और आउटगोइंग। पिन नंबर 23 ऑफ यूजार्ट इज इनकमिंग और आउटगोइंग। तो अगर पिन डायग्राम ध्यान होगा, उसका पिन के डिस्क्रिप्शन ध्यान होगी, तो आप बता पाएंगे कि वो इनकमिंग है या आउटगोइंग। नेक्स्ट इज आर्किटेक्चर ऑफ 8251 और यूजार्ट। यूजार्ट का आर्किटेक्चर कैसा होता है? नाउ सी, दिस आर्किटेक्चर इज डिवाइडेड इनटू 5 ब्लॉक्स: डेटा बस बफर, कंट्रोल लॉजिक, मॉडेम कंट्रोल, ट्रांसमिशन कंट्रोल एंड रिसेप्शन कंट्रोल। तो ये क्या है? ट्रांसमीटर के लिए है, ये रिसीविंग के लिए है, ये मॉडेम है, ये कंट्रोल लॉजिक है आपका, एंड दिस इज योर डेटा। Each and every block is connected with the internal data bus for to and from transmission of data. जब 8251 डेटा ट्रांसमिट करेगा तो ये वाला ब्लॉक यूज होगा। जब 8251 डेटा रिसीव करेगा तब इस ब्लॉक का काम आएगा। ओवर अ नेटवर्क जब टेलीफोन लाइन यूज हो रही होगी तब मॉडेम कंट्रोल यूज होगा। कंट्रोल लॉजिक ओवरऑल सारे ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज होगा, एंड डेटा बस बफर इज फॉर डेटा ट्रांसपोर्टेशन ओनली। ओके, इन जनरल ओवरव्यू में इस तरीके से है। नाउ एक एक करके देखते हैं हम। डेटा बस बफर, this block helps in interfacing the internal data bus. Interfacing means two different devices. Internal data bus of 8251 to the system data bus. 8251 is UART and system means computer यानी processor. So जब 8251 और processor को connect करेंगे then it is known as interfacing, not cascading. Okay? The data transmission is possible between 8251 and CPU by data bus buffer block. Data bus means it is a transmission line and buffer means in between storage. जब डेटा A से निकल के B तक पहुंचना है तो बीच में डेटा कहाँ है? इस लाइन में, इस वायर में, इस बस में, then it is known as buffer. Okay? So buffer क्या होता है? टेम्पररी स्टोरेज होता है। स्टोरेज किस लिए होता है? ये डेटा के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए। ओके, कोई भी सिग्नल, कोई भी कंटेंट, कुछ भी आप स्टोर करना चाहते हो तो वो बफर में स्टोर किया जा सकता है। जब डेटा बस बफर का मतलब क्या हो गया? जो डेटा बस में ट्रेवल हो रहा है तो वो बस भी एक तरह से कैरियर है, तो वो कैरियर क्या कर रही है? स्टोर कर रहा है कुछ टाइम के लिए। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डेटा बस बफर। नेक्स्ट इज मॉडेम कंट्रोल। मॉडेम मीन्स, मॉडेम की जो डेफिनेशन होती है दैट इज मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? सुपर इम्पोजिशन ऑफ signal on a carrier wave. Okay, why it is necessary? Because the signal strength of any signal, the signal strength of any signal, listen carefully please, signal strength of any signal is not so high, or not, the frequency is not so high, so it will get distracted or it will get distorted over a distance. So basically क्या करते हैं? सिग्नल जो वेव है या सिग्नल का जो आपका लाइक इटसेल्फ अकेले ट्रेवल करेगा तो कुछ दूरी तक जाएगा, बट अगर हम सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ मिक्स करते हैं, सिग्नल क्या है? वो भी एक तरह की वेव है, यानी कि सिग्नल क्या है? एक तरह का फ्रीक्वेंसी है। वो अकेले ट्रेवल करेगा तो थोड़ी देर तक, थोड़ी दूर तक जाएगा। अगर आप उसको किसी हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ मिक्स कर दे तो वो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो ज्यादा दूर तक जाएगा। दैट मिक्सिंग इज नोन एज मॉड्यूलेशन। उसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। नाउ जब आपने सिग्नल को किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी के साथ या हाई फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्स करके भेजा तो दूर तक तो चला गया, बट हमारा जो एक्चुअल सिग्नल है उसमें एक दूसरी फ्रीक्वेंसी जो सिर्फ कैरियर, दैट्स इट इज नोन एज कैरियर फ्रीक्वेंसी। सिग्नल फ्रीक्वेंसी एंड कैरियर फ्रीक्वेंसी, उन दोनों को मिक्स करना या सुपर इम्पोजिशन करना, दैट इज नोन एज मॉड्यूलेशन। फिर एट द रिसीविंग एंड, अब वो दोनों मिक्स्ड सिग्नल पहुंचा आपके पास, आपको दोनों अलग अलग करना है, मीन सिग्नल अलग करना है, कैरियर अलग करना है। दैट फिनोमेना इज नोन एज डीमॉड्यूलेशन। ओके, सो मॉड्यूलेटर इज अ डिवाइस जो मॉड्यूलेट करती है, डीमॉड्यूलेटर इज अ डिवाइस जो सिर्फ डीमॉड्यूलेट करती है, एंड मॉडेम इज अ डिवाइस जो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर दोनों का काम करता है। ओके,
आप लोगों ने सुना होगा इंटरनेट चलाने के लिए हमें मॉडेम की जरूरत होती थी बहुत पहले। अगर आप घर के टेलीफोन लाइन से चला रहे थे तो मॉडेम का रिक्वायरमेंट रहता था। अभी भी राउटर्स वगैरह जो होते हैं, कुछ लोग उसको मॉडेम वगैरह बोलते हैं, ठीक है। सो बेसिकली वो क्या है, आपके नॉर्मल जो आपने रिक्वेस्ट जनरेट की उसको मॉड्यूलेट करके आगे भेजेगा। जो सर्वर से रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आया आपके पास, उसको डिमोड्यूलेट करके आप तक पहुंचाएगा। सो मॉडेम का काम क्या है, मॉड्यूलेट करना और डीमोड्यूलेट करना। नाउ सी, modulator and demodulator, that is modem. Modem is a device that converts analog signal to digital signal and vice versa. Vice versa means analog to digital and digital to analog. It helps the computers to communicate over telephone lines or cable wires. मीन्स वायर्स कनेक्ट करके जो कंप्यूटर की कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रही है। अब दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो फॉलोइंग आर द एक्टिव लो पिन्स ऑफ मॉडेम। मॉडेम स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे, इसमें 4 पिन है, देखिए DSR, DTR, CTS, RTS। चारों ही पिन एक्टिव लो है, सबके ऊपर बार है, इसलिए सब एक्टिव लो है। किस पिन का क्या काम है, देखिए DSR, डेटा सेट रेडी सिग्नल, इज एन इनपुट सिग्नल। ये इनपुट सिग्नल है जो ये बताएगा कि कब आपका डेटा रेडी है। डेटा टर्मिनल रेडी, इट्स एन आउटपुट सिग्नल। आउटपुट क्या बताएगा, अब डेटा टर्मिनल रेडी है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। CTS is it's an input signal which controls the data transmit circuit. CTS क्या है, इनपुट सिग्नल है जो डेटा ट्रांसमिट सर्किट को कंट्रोल करेगा। CTS, द मीनिंग ऑफ CTS इज, हमने यहाँ पे देखा भी था, CTS का मतलब क्या है, क्लियर टू सेंड डेटा। क्लियर टू सेंड मीन्स अब आपका डेटा सेंड होने के लिए रेडी है। सो ये इनपुट सिग्नल है जो क्या कंट्रोल कर रहा है, डेटा ट्रांसमिट। क्लियर टू सेंड, जब कब तक आपका डेटा आएगा या सेंड होना है। The next is RTS. It's an output signal which is used to set the status RTS. Status RTS means ready to send. कब डेटा सेंड होना है वो कौन बताएगा, RTS. Okay, so these are the signals which are in the modem control unit. Next is read-write control logic. Read-write control logic, this control unit. Okay, this control unit is having read, write, reset, clock and C/D bar. C/D bar क्या था, कंट्रोल सिग्नल और डेटा। नाउ सी, इट इज अ कंट्रोल ब्लॉक फॉर ओवरऑल डिवाइस। पूरी डिवाइस का कंट्रोल ब्लॉक है। इट कंट्रोल्स ओवरऑल वर्किंग बाय सेलेक्टिंग द ऑपरेशन टू बी डन। कौन सा ऑपरेशन करना है, कम्युनिकेशन कैसे होगा, टू और फ्रॉम, किस तरीके से डेटा कहां से कहां जाना है। ओके, लाइक A एंड B। ओके, इन दोनों के बीच में वायर भी लगी हुई है, जुड़े हुए। अब डेटा यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, वो कैसे पता लगेगा, दैट डिपेंडिंग ऑन द दिस कंट्रोल लॉजिक। कंट्रोल लॉजिक इनेबल करेगा कि डेटा प्रोसेसर ने भेजना है या यूजर्ट ने भेजना है। डेटा रिसीव प्रोसेसर करेगा या यूजर्ट करेगा। ओके, द ऑपरेशन सेलेक्टिंग इज डिपेंडिंग ऑन दिस। CS बार, CS बार एक्टिव लो सिग्नल है, इट मीन 1 होगा अगर ये तो कुछ नहीं होगा। CS बार का 0 होना नेसेसरी है। ओके, CS बार सिग्नल का 0 होना नेसेसिटी है। अगर CS बार 1 है, बाकी कोई भी सिग्नल कुछ भी बोलता रहे, कोई काम नहीं होगा, बिकॉज आपका जो डिवाइस है वो सेलेक्टेड नहीं है, वो ऑन नहीं है, ऑफ है। ऑफ में आप कुछ नहीं कर सकते। देन C/D बार, when it is 0, when it is 0 means D, so we are dealing with data, we are dealing with data. When it is 1, we are dealing with control signal, that is status word or control word. Okay, when it is 1, it means C is active. C means either status word or control word. Okay, when it is 0, this is 0 1 1 0, 0 1 1 0. When read bar is 1 means read नहीं होगा। रीड बार है, रीड बार का मतलब क्या हुआ, एक्टिव लो। सिमिलरली राइट बार, राइट बार मीन एक्टिव लो। कब एक्टिव होगा, जब ये 0 होगा। ओके, यहाँ पर क्या होगा, राइट यहाँ होगा, दिस इज राइट, दिस इज रीड, अगेन दिस इज रीड,
this is right. Okay, now how it works, read, data read होगा कहाँ से, CPU से, 8251 का, 8251 CPU से डेटा रीड करेगा, डेटा राइट, अब CPU 8251 को डेटा सेंड करेगा, दिस इज रिसीविंग, दिस इज सेंडिंग, यानी ट्रांसमिशन। अगेन रीड, स्टेटस वर्ड किसका, 8251 का स्टेटस रीड होगा, अब 8251 पर स्टेटस राइट होगा, यानी ट्रांसमिशन। ओके, प्रोसेसर कब रीड कर रहा है, कब राइट कर रहा है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन दीज टू सिग्नल्स। दीज टू सिग्नल्स आर कनेक्टेड विद प्रोसेसर, प्रोसेसर के रीड और राइट के साथ कनेक्ट होंगे ये। अगर प्रोसेसर रीड सिग्नल जनरेट कर रहा है मींस प्रोसेसर वांट्स टू रीड, प्रोसेसर वांट्स टू रीड, हम प्रोसेसर की बात करेंगे। इफ प्रोसेसर इज जनरेटिंग राइट मींस प्रोसेसर वांट्स टू राइट, तो प्रोसेसर डेटा भेज रहा है किसके पास, 8251 के पास। दिस एरो इज ट्रांसमिशन, दिस इज रिसेप्शन, कि 8251 रिसीव कर रहा है, 8251 ने कमांड भेजी है रीड करने की। सो इन दिस वे दिस यूनिट सेलेक्ट्स वन ऑफ द थ्री रजिस्टर्स। कौन कौन से रजिस्टर्स हैं जो सिलेक्ट होंगे, आइदर डेटा और कंट्रोल और स्टेटस। ओके, या तो डेटा होगा या कंट्रोल होगा या स्टेटस होगा। तो तीन अलग अलग रजिस्टर्स हैं, इन तीनों में भी जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई, डेटा मीन्स जो डेटा ट्रांसपोर्ट करना है आपको ए से बी, कंट्रोल वर्ड और स्टेटस मीन्स स्टेटस इज द स्टेटस ऑफ द चिप, वो रेडी है या रेडी नहीं है, एंड कंट्रोल वर्ड इज मीन व्हाट ऑपरेशन इज टू बी डन, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, वो कंट्रोल वर्ड बताएगा। Now transmit buffer block. Transmit buffer block is used for parallel to serial conversion. Parallel to serial conversion means receives the parallel byte for conversion into serial signal and further transmission onto a common channel. So transmission block क्या करेगा, वो receive करेगा parallel, okay, and उसको serial में convert करेगा। TXD, TX means transmission. It is an output signal. Transmission हमेशा output ही होता है। If it is value is 1 means transmitter will transmit the data. As it is not active low, okay, इसके ऊपर कोई बार नहीं है, तो ये कब काम करेगा, जब इसकी वैल्यू 1 होगी। Then next is transmit control. अब ट्रांसमिशन कंट्रोल की बात हो रही है। ट्रांसमिशन बफर मतलब एक स्टोरेज है, अब ये कंट्रोल सिग्नल की बात कर रहा है। It is used to control the data transmission with the help of following pins. इन तीन पिन की हेल्प से हम ट्रांसमिशन को कंट्रोल करते हैं, ट्रांसमिशन रेडी, ट्रांसमिशन एम्प्टी एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल। TXRDY, that is transmission ready. Transmitter is ready to transmit the data. When transmitter is ready, तो ये सिग्नल हाई हो जाएगा। जब ट्रांसमीटर के पास कुछ नहीं है, ट्रांसमीटर ने सब कुछ सारा डेटा ट्रांसमिट कर लिया है, अब उसके पास कोई फर्दर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए नहीं है, तो कैसे पता लगेगा, TX empty, this signal will tell you that there is no more data to be sent. It is an output signal which indicates that TX empty pin has transmitted all the data characters and transmitter is empty now. अब ट्रांसमीटर के पास फर्दर और उसके बफर में, स्टोरेज में, पाइपलाइन में कहीं कोई डेटा नहीं है जो उसको आगे और भेजना है। मीन्स सारा का सारा ट्रांसमिशन या डेटा का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। देन TXT, there is an active low input which controls the data transmission rate of transmitted data. किस रेट पर मीन्स किस स्पीड पर, किस फ्रीक्वेंसी पर डेटा ट्रांसमिट होगा, दैट इज कंट्रोल्ड बाय TXT. TXT means transmission control. Transmission control. It will control the rate of transmission. Rate means on which frequency, on what speed the data is to be sent. Then the receiving unit. Receive buffer. Buffer means storage. This block acts as buffer for received data. जो received data आया है means जो data 8251 यूजर के पास आया है उसको रखने के लिए ये यूनिट यूज होती है, बफर। बफर मीन थोड़ा सा स्पेस है, छोटा यूनिट है और टेम्परेरी वहां पे रहेगा।
It is like a bus only. RxD. RxD is an input signal which receives the data. Rx means receive, D means data. So receive the data. RxD signal is receiving the responsible for receiving the data. मीन जब RxD के ऊपर 1 है, हाई है जब ये वाली पिन, इट मीन ये डेटा रिसीव कर रही है, सुन रही है, ओके, कंटिन्यूसली लिसनिंग। जब इसके ऊपर 0 हो जाएगा, इट मीन अब इसने डेटा रिसीव करना बंद कर दिया। रिसेप्शन ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए फर्दर आपके पास 3 पिन हैं, कौन कौन सी? Rx रेडी, रिसेप्शन रेडी, Rxc रिसेप्शन कंट्रोल एंड synchronous detect or break detect. Okay, how they work? Rx ready is an input signal which indicates that the device is ready to receive the data. Okay, जैसे transmission ready था ऐसे reception ready. Rxc similarly Txt के जैसा है, जब transmission control हो रहा है तो reception भी control होगा. Okay, तो ये क्या है? Active low signal है which controls the data transmission rate of received data. अब जो रिसीव हो रहा है डेटा, उसकी क्या स्पीड से क्या डेटा आपने रिसीव किया, मीन एक डिवाइस है जो सेंड कर रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए सिग्नल होगा TXT। दूसरी डिवाइस है दैट इज RxC। RxC क्या कर रहा है? रिसेप्शन कंट्रोल। रिसेप्शन कंट्रोल मीन किस स्पीड पर, ट्रांसमिशन स्पीड क्या होगी इस रिसीव डेटा की। ओके, लाइक एक आदमी जिस स्पीड से बोल रहा है, दूसरा उसी स्पीड से लिख पाए, उसी दोनों को सिंक्रोनस मोड होना चाहिए, मीन दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों की ट्रांसमिशन रेट जो अगर इक्वल होगी तभी जो बोलने की स्पीड है और जो लिखने की स्पीड है वो मैच करेगी, अदरवाइज मैच नहीं करेगी। तो होगा क्या, या तो लिखते लिखते वो बीच में छूट जाएगा उसका, या फिर जो बोल रहा है उसको रुक रुक के बोलना पड़ेगा। ओके, द नेक्स्ट इज सिंक्रोनस डिटेक्ट और ब्रेक डिटेक्ट। दिस इज एन इनपुट और आउटपुट टर्मिनल। ये इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम करेगा। एक्सटर्नल सिंक्रोनस मोड इनपुट टर्मिनल एंड असिंक्रोनस मोड आउटपुट टर्मिनल। अगर सिंक्रोनस मोड में काम कर रही है डिवाइस तो ये इनपुट है, अगर असिंक्रोनस मोड में काम कर रही है तो ये आउटपुट टर्मिनल की तरह काम करेगा। सिंक्रोनस मीन डिवाइस ए एंड डिवाइस बी दोनों एक साथ एक टाइम पर काम कर रहे हैं। असिंक्रोनस मीन दोनों इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी क्लॉक के हिसाब से काम कर रहे हैं। सिंक्रोनस मोड में कॉमन क्लॉक होगी, असिंक्रोनस मोड में दोनों की अपनी इंडिपेंडेंट क्लॉक होगी। नेक्स्ट इज ट्रांसमीटर और वी कैन से दैट ट्रांसमिशन ऑपरेशन। ट्रांसमिशन ऑपरेशन में क्या क्या काम हो रहा है, ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, अगर यूजर्ट से हम डेटा ट्रांसमिट करा रहे हैं तो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। इसके बाद फिर हम देखेंगे यूजर्ट से अगर डेटा रिसीव करा रहे हैं तो रिसेप्शन कैसे होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसमीटर एक्सेप्ट पैरेलल डेटा फ्रॉम CPU एंड कन्वर्ट्स देम इनटू सीरियल डेटा। वो क्या रहा है, एक प्रोसेसर P1 यहाँ है, प्रोसेसर P2 यहाँ है, ये भी प्रोसेसर और ये प्रोसेसर, ये दोनों प्रोसेसर बीच में किसी एक डिवाइस से कनेक्टेड है। ओके, एंड दिस डिवाइस इज नोन एज 8251। तो क्या कर रहा है, इससे रिसीव करेगा, इसको ट्रांसमिट करेगा, इससे रिसीव करेगा, इसको ट्रांसमिट करेगा 8251। ठीक है, so it accepts parallel data from CPU। एक प्रोसेसर पैरेलल डेटा भेज रहा है, दूसरे को सीरियल में भेज देगा, कन्वर्ट करेगा सीरियल, फिर सीरियल को आगे भेज देगा। The transmission section is double buffer। डबल बफर का मतलब क्या है, एक बफर नहीं है, दो बफर है। दो बफर किससे has a buffer register to hold 8-bit parallel data and another register is called output register that converts parallel data into serial data। Means जो पैरेलल डेटा इसके पास आ रहा है उसको होल्ड कर रहा है, कन्वर्ट करके सीरियल बना रहा है, वो सीरियल डेटा भी किसी बफर में डाल रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल बफर। एक बफर पैरेलल के लिए है, एक बफर सीरियल के लिए है। When output register, listen carefully, now this is a important point, जब आउटपुट रजिस्टर एम्प्टी है, मीन्स बाहर जाने के लिए, यानी कि कोई फर्दर डेटा ट्रांसमिशन के लिए नहीं है, तो डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बफर टू आउटपुट रजिस्टर। तो बफर में जो डेटा पड़ा है वो आउटपुट में जाएगा। आउटपुट रजिस्टर क्या होगा, आउटपुट रजिस्टर वो लोकेशन होगी जहां से डेटा ट्रांसमिट होना है। ओके, जब डेटा ट्रांसमिट हो चुका है तभी आउटपुट रजिस्टर खाली होगा, और जब आउटपुट रजिस्टर खाली होगा तब वो बफर से, यानी कि जो डेटा ट्रांसमिट होना है उसको बफर से आउटपुट में डाल देगा ताकि अब वो डेटा ट्रांसमिट हो जाए। मीन पहले एक एक्स अमाउंट ट्रांसफर हो गई, जब वो रजिस्टर से निकल गई एक्स, तो फिर नया वाई डाल दिया, जब वो वाई बाहर चला गया देन उसमें
अनदर बिट्स जो है ट्रांसफर करते जा रहे हैं फ्रॉम बफर टू रजिस्टर। नाउ द प्रोसेसर कैन अगेन लोड अनदर डेटा इनटू बफर रजिस्टर। अब क्या है, बफर रजिस्टर से डेटा आउटपुट में आ गया, अब बफर में दूसरा डेटा आएगा। सो दिस इज अ पाइपलाइन ऑपरेशन। ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? फर्दर इज, if buffer register is empty means buffer register खाली हो चुका है, it means transmission ready goes to high। transmission ready वो क्यों हाई हो जाएगा? because buffer register खाली हुआ है, it means उसने आउटपुट रजिस्टर के अंदर डेटा डाल दिया है, और जब आउटपुट के अंदर डेटा है that means transmission is about to happen, that's why transmission ready pin will be high। if output register will be empty, अगर आउटपुट रजिस्टर खाली होता है, इट मींस आउटपुट के पास, रजिस्टर के पास डेटा नहीं है ट्रांसमिट करने के लिए, देन टीएक्स एमपी गोज हाई। तो ट्रांसमिशन अब नहीं हो रहा है, ये बताने के लिए कौन सा सिग्नल हाई हो जाएगा? टीएक्स एमपी। मींस जब डेटा आउटपुट रजिस्टर में है तो ट्रांसमिशन होगा, और जब डेटा आउटपुट रजिस्टर में नहीं है, जब आउटपुट रजिस्टर में कुछ नहीं है, तब ट्रांसमिशन या टीएक्स ये नहीं होगा। ओके, द क्लॉक सिग्नल दैट इज टीएक्सी, टीएक्सी बार होता है ये ब्रैकेट में जो लो लिखा है ना, इसका मतलब है इसके ऊपर बार लगा होता है, एक्टिव लो सिग्नल है। कंट्रोल्स द रेट एट विच द बिट्स आर ट्रांसमिटेड। क्लॉक सिग्नल से क्या कंट्रोल कर रहे हैं हम? ट्रांसमिशन रेट ऑफ यूजार्ट बाय यूजार्ट, सॉरी, ट्रांसमिशन रेट बाय द यूजार्ट, बिकॉज यूजार्ट जो है वो ट्रांसमीटर एज वेल एज रिसीवर दोनों का काम कर रहा है। बीच में ब्रिज है, एक जो ब्रिज होता है, फॉर एग्जांपल एक ये एंड है, एक ये एंड है रिवर का, दोनों के बीच में ब्रिज जो बना हुआ होता है, तो ब्रिज का काम क्या होता है? इधर से भी जा सकते हो और इधर से भी जा सकते हो। ठीक है, तो यूजार्ट क्या है, वो एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, एक डिवाइस से डेटा लेगा, दूसरे को देगा, दूसरी से लेगा, पहले को देगा। दिस वॉज द ट्रांसमिशन। नाउ सेकेंड इज रिसीविंग ऑपरेशन। तो रिसीप्शन ऑपरेशन कैसे काम करता है? The receiving section accepts serial data and converts them into parallel data। सीरियल डेटा रिसीव करेगा और उसको पैरेलल डेटा में कन्वर्ट कर देगा। इट इज अगेन डबल बफर्ड। ओके, डबल बफर्ड का मतलब क्या होगा? वन इज फॉर सीरियल एंड वन इज फॉर पैरेलल। इनपुट रजिस्टर टू रिसीव सीरियल डेटा, कन्वर्ट टू पैरेलल, एंड बफर रजिस्टर टू होल्ड द पैरेलल डेटा। पहला सीरियल के लिए, दूसरा पैरेलल के लिए। सिमिलरली जैसे ट्रांसमिशन में था, सेम वही काम रिसेप्शन में है। इफ RxD मीन्स रिसीविंग डेटा, अगर रिसीविंग डेटा लाइन गोज लो का मतलब क्या हुआ? इस पिन पर अगर जीरो आता है, मीन्स ये पिन ऑफ होती है, रिसीविंग डेटा नहीं आता, तो वो क्या करता है? कंट्रोल लॉजिक एज्यूम्स दैट इट इज अ स्टार्ट बिट। इट मीन्स अब डेटा वहां से स्टार्ट होने वाला है। ओके, वेट फॉर हाफ अ बिट टाइम, कुछ टाइम के लिए वेट करता है, एंड सैंपल्स द लाइन अगेन, फिर से लाइन को चेक करता है। कौन सी लाइन को? RxD। अगर ये अगेन लो है, अभी तक लो है, इट मीन्स व्हाट? दैट डेटा इज अबाउट टू रिसीव। ओके, अगर RxD पिन लो हो जाती है, लो होने का मतलब क्या है? वहां पर जीरो है, ग्राउंड है, ऑफ है वो पिन, कोई सिग्नल नहीं है, आपने एक्सटर्नली कुछ अप्लाई नहीं किया है, तो कंट्रोल लॉजिक को क्या पता लगता है? दैट डेटा रिसीव होना है, वो सिर्फ डेटा की वेट कर रही है, एंड उसको एक स्टार्ट बिट की तरह ट्रीट करते हैं। और सिंक्रोनस मोड में होती है ना स्टॉप बिट स्टार्ट बिट, तो उसकी स्टार्ट बिट की तरह उसको ट्रीट करेगा। थोड़ी देर बाद फिर से चेक करेगा, सैंपल्स द लाइन अगेन, बट इज स्टिल लो, देन द इनपुट रजिस्टर एक्सेप्ट्स द फॉलोइंग बिट। सो इनपुट रजिस्टर क्या करेगा? वो बिट्स को रिसीव करना शुरू कर देगा, फॉर्म्स द कैरेक्टर एंड लोड्स इनटू द बफर रजिस्टर। तो उनको बफर रजिस्टर में लोड करेगा। व्हाई? बिकॉज RxD पिन क्या बताती है? रिसीव्स डेटा। अगर इसके पास कोई सिग्नल नहीं है तो इसका मतलब डेटा रिसीव होगा, अदरवाइज ये एक्टिव लो सिग्नल होगा तभी ये लो पर काम करेगा। ओके, the CPU reads the parallel data from the buffer register से data parallelly read होगा, then input register loads the parallel data into buffer register। इनपुट रजिस्टर क्या करेगा? वहां आउटपुट रजिस्टर था, बिकॉज वो ट्रांसमिशन था, ये रिसेप्शन है, इसलिए यहाँ पर इनपुट रजिस्टर है, तो इनपुट रजिस्टर क्या करेगा? इनपुट रजिस्टर लोड्स द पैरेलल डेटा टू बफर रजिस्टर, देन RX रेडी मीन्स रिसेप्शन रेडी। अब जब रिसेप्शन रेडी होगा, इट गोज हाई, द क्लॉक सिग्नल कंट्रोल्स द रेट एट विच द बिट्स आर रिसीव्ड। तो रेडी
पिन को हाई कर देंगे एंड क्लॉक सिग्नल क्या करेगा, वो बिट्स किस रेट पर रिसीव होंगी, क्या फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करेगा। सो ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन फ्रीक्वेंसीज मस्ट बी सेम, दोनों सेम होंगी तभी डेटा पूरी तरीके से रिसीव होगा। देखिए, इनपुट रजिस्टर ने बफर रजिस्टर को लोड किया है, इनपुट से डेटा बफर में आया है, अब बफर से वो रीड होगा, दैट्स व्हाई RX रेडी गोज हाई। ट्रांसमिशन और रिसेप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पर बफर से आउटपुट में और आउटपुट से ट्रांसमिशन होता है, यहाँ पहले इनपुट में आया, इनपुट से बफर में आया, बफर से रीड हुआ, दैट्स व्हाई इनपुट से जब बफर में डेटा आ रहा है तब रेडी लाइन हाई हो रही है। जस्ट अ रिवर्स रेसिप्रोकल ऑपरेशन during asynchronous mode. If the communication is asynchronous mode, then the signal synchronous detect और break detect। अब सिंक्रोनस डिटेक्ट है और हमारे पास मोड कौन सा है, असिंक्रोनस, तो सिंक्रोनस डिटेक्ट काम नहीं करेगा, काम क्या करेगा, ब्रेक डिटेक्ट, विल इंडिकेट द ब्रेक इन द डेटा, तो ये क्या डिटेक्ट करेगा, ब्रेक इन द डेटा। एंड व्हेन द डेटा इज इन सिंक्रोनस मोड, तो ब्रेक डिटेक्ट काम नहीं करेगा, काम क्या करेगा, सिंक्रोनस डिटेक्ट, सो इट विल इंडिकेट द रिसेप्शन ऑफ सिंक्रोनस कैरेक्टर। सारे कैरेक्टर सिंक्रोनसली आ रहे हैं, ये कौन चेक करेगा, सिंक्रोनस डिटेक्ट। नेक्स्ट इज 8251 मोड रजिस्टर। 8251 में मोड रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर, कमांड रजिस्टर 8-8 बिट के हैं, सारे पैटर्न हैं। ओके, किस तरीके से हम इसको रीड करते हैं तो देखिए 0 1 2 3 अप टू 7 टोटल 8 बिट का रजिस्टर है, और ये 8 बिट रजिस्टर में जो वैल्यूज लिखी जाती है वो क्या है, 0 एंड 1 इज फॉर, ये कंप्लीट, ये जो मोड रजिस्टर है मीन्स ये पूरा 8 बिट का जो है, दिस इज मोड रजिस्टर। 0 एंड 1 इज फॉर बॉड रेट, baud rate is the rate on which the communication is happening, किस फ्रीक्वेंसी पर कम्युनिकेशन हो रही है, दैट इज 0 मीन्स सिंक्रोनस मोड में हो रही है, 0 1 मीन्स into 1 1 time higher than the clock, 10 means 16 times higher than the clock, 11 means 64 times higher than the clock. These are the three frequencies 1, 16 and 64। ओके, यूजार्ट में आप प्रोसेस को अगर स्पीड चेंज करना चाहते हैं असिंक्रोनस मोड में, यानी 1 टाइम, 16 टाइम और 64 टाइम्स, एक डिवाइस 64 टाइम्स ज्यादा फास्टली डेटा सेंड कर रही है, तो बाय पिन 0 और 1 हम बॉड रेट सेलेक्ट कर सकते हैं। 0 मतलब सिंक्रोनस मोड, अब सिंक्रोनस मोड में चलेगा तो बाकी तीन की तो जरूरत नहीं है, बिकॉज स्पीड उसमें दोनों की सेम रहेगी, दोनों डिवाइसेस की, ए और बी। असिंक्रोनस मोड में ही आप स्पीड को चेंज कर सकते हो, दैट इज 1 टाइम, 16 टाइम और 64 टाइम। देन पिन नंबर 2 and 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर लेंथ, कितनी लेंथ का कैरेक्टर है, 5 बिट, 6, 7 और 8 बिट, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन 00 to 11। 5 बिट का डेटा आएगा, 6 बिट का, 7 बिट का या 8 बिट का। देन पैरिटी चेक करेंगे, डेटा की पैरिटी चेक करनी है तो 1 होगा, इनेबल कर रहे हैं अगर उसको पैरिटी के लिए, और अगर पैरिटी चेक नहीं करनी तो पुट 0 टू डिसेबल द पैरिटी चेक। देन पैरिटी ऑफ द नंबर, पैरिटी मीन्स नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ वंस अगर ऑड है तो 0, नंबर ऑफ वंस अगर इवन है तो 1। ये मोड रजिस्टर है, इसमें डेटा नहीं होगा। ओके, ये 8 बिट का पैटर्न आपको सिर्फ मोड बताएगा दैट 8251 क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। ओके, डेटा कहाँ होगा, डेटा बस में, D0 से D7। देन लास्ट 2 पिन आर फॉर स्टॉप बिट। 00 मीन्स इनवैलिड, 00 अगर होगा तो कोई काम नहीं करेगा, काम कब करेगा, 01, 10 और 11। इन द अबव एग्जाम्पल, अभी हमने यहाँ पे देखा था, कुछ टाइम के लिए वेट फॉर हाफ अ बिट टाइम, कुछ टाइम के लिए वेट करेगा, देन सैंपल द लाइन अगेन, उसके बाद दोबारा लाइन चेक करेगा, तो वही है। 00 मीन्स कोई कुछ नहीं है, 01 मीन्स एक बिट का टाइम देगा, 10 मीन्स 1.5 बिट एंड 11 मीन्स 2 बिट, तो इतना टाइम लेकर वो वेट करेगा, देन उसके बाद अगेन लाइन को रीड करना स्टार्ट करेगा। बाय दिस सीक्वेंस ऑफ वंस एंड जीरोस, इस पूरे पैटर्न में जीरोस और वंस ही लिखे जाएंगे, एंड बाय द सीक्वेंस ऑफ दीस जीरोस एंड वंस मोड ऑफ 8251 विल बी डिसाइडेड। नाउ 8251 के मोड्स में मोड 0 1 2 3
ये सब नहीं करना है। मोड मीन 8251 किस तरीके से काम कर रहा है, दैट इज द मोड ऑफ 8251। नेक्स्ट इज कमांड रजिस्टर। 8251 कमांड रजिस्टर। कमांड रजिस्टर क्या होता है? कमांड रजिस्टर इज अगेन 8 बिट इन लेंथ। अब ये इसमें 8 अलग अलग 8 different parameters are there. Different 8 parameters are there. Each and every parameter is responsible for transmission and reception of the data. Like transmit enable. The first one is transmit enable. If it is high, value either 1 or 0 यही हो सकती है हर एक पोजीशन पे। ओके, इफ ट्रांसमिशन इनेबल इट इज हाई मीन अब आपका जो 8251 है वो ट्रांसमिशन मोड में है। DTR, data terminal ready. If data terminal is ready, then this will be high as 0. RxC, receiver enable. एक साथ रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों एक साथ इनेबल करने हैं, डिसेबल करने हैं, अलग अलग इनेबल करने हैं, अलग अलग डिसेबल करने हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द कमांड वर्ड। कमांड वर्ड की वैल्यूज के हिसाब से काम करेगा। इफ इट इज पॉसिबल तो ये दोनों को एक साथ इनेबल कर सकता है। इफ इट इज नॉट पॉसिबल तो दोनों एक साथ इनेबल नहीं होकर अलग अलग टाइम पर इनेबल होगा। तो क्या होगा? एक 0 रहेगा, दूसरा 1 रहेगा, मींस एक लो रहेगा, एक हाई रहेगा। देन SBPR के देर इज सेंड ब्रेक कैरेक्टर, जो बीच में डेटा की ब्रेक सीक्वेंस को ब्रेक करना है अगर आपको, तो किस डेटा से सीक्वेंस ब्रेक होगी। मतलब अगर आपको बीच में T आ गया लिखा हुआ तो अब आपने डेटा को ब्रेक करना है। सो दैट मीन्स कौन सा कैरेक्टर है जो हमारे पास ब्रेक डिनोट कराएगा, दैट इज सेंड ब्रेक कैरेक्टर। ER, एरर रीसेट। कोई एरर आता है तो आप डिवाइस को रीसेट कर सकते हो। RTS, रिक्वेस्ट टू सेंड द डेटा। IR, इंटरनल रीसेट। EH, एंटर हंट मोड। हंट मीन्स डिबगिंग, जब आपको डिबगिंग करनी है, ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम आपने फाइंड आउट करी और उसको सॉल्व करना है, दैट इज हंट मोड। So this was the command register of 8251. Next is 8251 status register. कमांड रजिस्टर में कौन कौन से पैरामीटर है, स्टेटस में कौन से पैरामीटर है, ध्यान रखने होंगे। MCQ में क्वेश्चन ये हो सकता है लाइक TX ready is a part of command register और status register। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो 8251 का स्टेटस रजिस्टर क्या होता है? सबसे पहले ट्रांसमिशन रेडी, रिसेप्शन रेडी, ट्रांसमिशन एम्प्टी, देन पैरिटी एरर। पैरिटी एरर मीन अगर नंबर ऑफ वंस पहले आपने 1 लिया है, मान लीजिए ऑड है और रिजल्ट में इवन आ रहे हैं, कुछ इस तरीके से चीज है, दैट इज नोन एज पैरिटी एरर। पैरिटी एरर मीन अकरेंस ऑफ वंस इन द डेटा। कितने वंस हैं, पैरिटी का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ वंस हैं डेटा में, दैट इज पैरिटी। ओके, द नेक्स्ट इज OE, दैट इज ओवररन एरर। ओवररन एरर का मतलब क्या होता है? अगर वही सेम डेटा दोबारा आ जाए। ओके, एक ही डेटा है, एक ही एलिमेंट है, वही बार बार आ रहा है, ओवररन डेटा। देन FE, दैट इज फ्रेमिंग एरर। स्टेटस है तो स्टेटस मीन ज्यादातर आप उसकी डिवाइस का जो पैटर्न है वो रीड करेंगे, मीन कोई एरर आ रहा है, डिवाइस रेडी है, ट्रांसमिशन होना है, एम्प्टी है, फुल है, डेटा है, नहीं है, तो ये सब स्टेटस में आएगा। कमांड में हम उसको कंट्रोल कर रहे थे। कमांड के पैटर्न देखिए, ट्रांसमिट इनेबल, डेटा टर्मिनल रेडी, रीसेट, तो ये सब कमांड है कंट्रोल करने के लिए। स्टेटस में जस्ट उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है आपको। फ्रेमिंग एरर क्या होता है? लाइक यू आर डिवाइडिंग डेटा इनटू फ्रेम्स, पैकेट्स बना रहे हो आप डेटा के, छोटे छोटे 8-8 बिट के, 4-4 बिट के, 5-5 बिट के, तो दैट इज अ फ्रेमिंग। तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर फ्रेम की कोई एक बिट मिसिंग हो या किसी पर्टिकुलर फ्रेम में कोई एक बिट बढ़ गई हो, तो क्या है, अगर डेटा का थोड़ा सा सीक्वेंस भी बिगड़ेगा तो वो फ्रेमिंग एरर कहलाएगा। ओके, देन लास्ट इज सेकंड लास्ट इज सॉरी सिंक्रोनस कैरेक्टर डिटेक्टेड। तो सिंक्रोनस कैरेक्टर डिटेक्टेड का मतलब क्या है? अगर कोई कैरेक्टर जो डिवाइस A और B के बीच में सिंक्रोनस मोड में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो जो कैरेक्टर यहाँ से भेजा है वही सेम कैरेक्टर यहाँ पर पहुंचा है, तो वो क्या बताएगा? दैट सिंक्रोनस मोड में कम्युनिकेशन हो रही है एंड दिस सिग्नल विल गोज हाई। देन DSR इज डेटा सेट रेडी। डेटा सेट रेडी का मतलब है नाउ इट इज रेडी टू सेंड द डेटा। तो स्टेटस है, स्टेटस क्या हुआ? हाँ, डेटा सेंड करने के लिए तैयार है, डेटा है नहीं हमारे पास, एम्प्टी है, ट्रांसमिशन करने के लिए है, रिसेप्शन करने के लिए रेडी है। सो दीज ऑल सिग्नल्स विल टेल द स्टेटस ऑफ द 8251 दैट इज यूज ऑफ।
So this was all about USART. Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again.